Hello students, I am Nagant Pratap Singh, your economics teacher. You are all welcome in today's online classes. As I told you in the previous video that illiterate and unhealthy population are a liability for the economy of any country. Whereas on the other hand, literate, well-educated, skilled and healthy population are an asset for the economy of any country. In today's video, I am going to tell you about the education, that how education is important for everyone. We know that education gives us knowledge, ideas, and shows us a path and teaches how to do any work in a proper way, and through education we can achieve our whatever the goals fixed by us. So it is very important for every person and also for the growth. It may be in field of economic, commercial, society, for everything, for the country, for the people. We can achieve according to our hard works only through education. You also know that the initial years of Sakal's education bore him the fruits and the later years in terms of a good job and salary. Education was an important input for the growth of Sakal, as well as also it is an important input for everyone, for every types of growth of every person. Education for Sakal opened new horizon for him, provided new aspirations and developed values of life. Education is very important because it provided us new aspiration and also developed the values of our life. And education is not important for some people. It was not important for Sakal only. But education contributes towards the growth of the society also. व्यक्ति शिक्षित होता है, एक परिवार शिक्षित होता है, तो उसी से समाज बनता है. जो समाज शिक्षित होता है तो उसमें भी विकास होता है. Education enhances the national income. It increases also the income of our national income. Cultural richness increases the efficiency of governance. Only through education there are tremendous changes in the society and the life of the people. Now you can also understand that education is must also and important for everyone.
There is a provision made for providing universal access, retention and quality in elementary education with a special emphasis on girls. आप लोग जानते होंगे कि बच्चों को तो पढ़ने की आज़ादी बहुत पहले से है, स्वतंत्रता है, उनको अवसर भी मिलते थे, लेकिन जब बात लड़कियों की आती थी तो उनको पढ़ने की सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। गार्जियन अपने बच्चियों पे शिक्षा को लेकर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते थे, जो कि आप जानते हैं कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो मेन और वोमेन दोनों के द्वारा किया जाता है। दोनों ही इकोनॉमी और सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान सब पे होना चाहिए। जहाँ हमारी ध्यान बच्चों की शिक्षा पे होती है, वहीं लड़कियों की भी शिक्षा पे ध्यान होना चाहिए। लड़कों को यदि मौका मिलता है तो लड़कियों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने कई योजनाएं बनाई, कई प्लानिंग की, ढेर सारे स्कूलों का इस्टेब्लिशमेंट किया, ऐसे ऐसे जगह किया जहां लोग शिक्षा से कोसों दूर थे, शहरों से बहुत दूर थे, जो पढ़ने के लिए शहर नहीं जा सकते थे, या ऐसे बच्चे जो गरीब तबके के थे जिनको पढ़ने का अवसर नहीं मिलता था। ऐसे तमाम इलाकों में, ऐसे जगहों पे हर बच्चों की शिक्षा के लिए गवर्नमेंट ने कई स्कूल्स स्थापित किए, जिसमें कि आप सब लोग को मालूम होगा, नवोदय विद्यालय का नाम सभी लोग जानते हैं। नवोदय विद्यालय हर जिले में है। इसके साथ साथ वोकेशनल जो कोर्सेज होते हैं, जो पेशेवर होते हैं, ऐसे कोर्सेज भी कई संस्थानों के द्वारा गवर्नमेंट के माध्यम से चलाए गए, जिसमें लोगों को कुशलता सिखाया जाता है, उन्हें कौशल सिखाया जाता है, उन्हें कुशल बनाया जाता है, यानी उनको स्किल्ड बनाया जाता है। अनस्किल्ड लेबर से उनको स्किल्ड लेबर में बदला जाता है। और आप जानते हैं कि अनस्किल्ड लेबर का काम इरेगुलर होता है, सुविधाएं नहीं मिलती, लो पेमेंट होता है, और जब वही एक स्किल्ड हो जाता है तो उसको रेगुलर वर्क, अच्छा पेमेंट, सुविधाएं, समाज में इज्जत, हर चीज़ में वो आगे रहता है। एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत से प्लान थे। जो पहला उसका फर्स्ट प्लान था, उसमें द प्लान outlay on education has increased from rupees 151 crore in the first plan to rupees 3766.90 crore in the 11th plan। जो पहला योजना चला था एजुकेशन के लिए, उसमें 151 करोड़ खर्च किया गया था, जबकि जो 11th प्लान जब आया तो 3766.90 करोड़ उस प्लान के हिसाब से शिक्षा के लिए खर्च किया गया था। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज ए परसेंटेज ऑफ GDP rose from 0.64% in 1951-52 to 3.11% in 2011 and 12। यानी एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे जो परसेंटेज था GDP का, वो बहुत ही बढ़ा। गवर्नमेंट ने कई योजनाएं लागू की, कई तरह के स्कूल स्थापित किए और सबको शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया। मुफ्त शिक्षा की भी व्यवस्था गवर्नमेंट ने की, जिससे हम आज भी देख सकते हैं प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूलों में जो नवोदय
विद्यालय है उसमें भी आपका एंट्रेंस के बाद यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो उसमें भी मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए